الحمدللہ ود والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد سیدنا محمد موضوع خطاب اس مہینے میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے تاراق اور برکات حضرات عالی قدر۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہوں گے جو دل و دماغ روح و جسم کو تازگی بخش دے گا۔ وہ سفر ہے اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کے حصول کا۔ جی ہاں، اس مان مبارک میں ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایک شکر نعمت اور تیزال کافر شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ زندگی، صحت، بریانی کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع، روزمرہ کی فیملی سے محبت، مگر ہم کس قدر شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر الہی ادا کرنے سے دل نورانی ہوتا ہے۔ شکر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہر صبح اور شام کم از کم 5 منٹ سکون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ 2 ذکر اللہ کی فضیلت۔ ذکر الہی وہ ستون ہے جس پر انسان کی روح استوار ہوتی ہے۔ الوزنی آمن آوا اویت تمنوا قال او بایام بنزنون الین الراد 28۔ اس مان رحمت میں ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اولیا نلے نلویا الیا او کا ورد کریں۔ صبح سویرے، آشام کے غروب، آفتاب کے وقت مناسب آواز سے پڑھا ہوا قرن حکیم اللہ کے ناموں کی تسبیح دل کو دوسری جہانوں میں لے جاتی ہے۔ 3 قرن مجید سے تعلق۔ قرآن اللہ کی زبانی پیغام ہے۔ اس مان عزیز میں روزانہ کم از کم 1 صفحہ تلاوت کرنے کا عہد کر ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تاکہ معانی اب کے قلب و عقل میں نہ جا۔ جب ہم قرآن عزیز سے لگاؤ پیدا کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت اور ہدایت خود بخود نمودار ہوگی۔ 4 دعا کی اہمیت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ماہ میں روزانہ کم از کم 3 اوقات میں، سحر، افطار اور رات کی تنہائی میں مخصوص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنی حاجات، گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا شاید ایک لمبا سجدہ ہو یا اپنی زبان سے مانگا ہوا کلمات دل۔ 5 روزہ کے ثمرات۔ اگر یہ مان رمضان ہے تو روزے کا پورا اہتمام کر روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ ظلم و تکبر سے دور رہنا، زبان کی حفاظت کرنا، تعریفی سلوک سے گریز کرنا، نیز فقراء و مساکین کے ساتھ ہمدردی اور صدقہ و خیرات میں اضافے کا نام ہے۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ 6 توبہ و استغفار۔ گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کا بے دریغ ورد کرنا دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِقَالْ رُوَيْبٌ أَغَفْنَرَ وَارِحِمَ مریم 58۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار اللہ پڑھنا معمول بنا۔ نیکیوں کا سلسلہ۔ نیکی کا پہلا دروازہ نماز ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات، یتیم و مسکین کی مدد، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کا خیال، مسلمانوں کی مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا شامل۔ ان کا ہر عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ 8 وانس قلبی اور خشوع قلب، کبھی دل کو بھٹکنے نہ دے۔ نماز فجر کے بعد کچھ دیر اللہ کے ذکر میں گزاری، کبھی مساجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن سے درود شریف کا ورد کران اعمال سے دل نرم ہوتا ہے اور آپ اللہ کی عظمت کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ 9 سوشل میڈیا اور مصروفیات کا درست استعمال۔ ہم میں سے بہت سے لوگ فون اور کمپیوٹر کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اپنے آن لائن وقت کو متوازن کریں۔ بچوں کو بھی سکھائیں کہ پڑھائی اور ذکر الہی کے ساتھ نیکی کی ویڈیوز، اسلامی لیکچرز، قرآن کریم کی تلاوت سننا مفید ہے۔ 10 روزانہ کا ایک نیک ارادہ۔ ہر صبح اپنے لیے ایک نیک ارادے کا ٹارگٹ رکھیں۔ جس دن میں کسی کا ماتھا ٹچ بھی کر دوں گا، کسی کو مسکرانے کا سبب بنوں گا، ایک قرآن کی آیت حفظ کروں گا، کاف انسان کی مدد کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے اہداف وقت کے ساتھ بڑے نتائج لائیں گے۔ 11 عبادت میں تسلسل۔ کبھی بھی عبادات میں وقفہ نہ ڈال۔ نماز، روزہ، صدقات، تلاوت قرآن ہر دن کے بعد جب اب دیکھیں گے کہ آپ کا روزانہ کا معمول اللہ کی یاد سے بھرپور ہے تو دل میں خوشی اور اطمینان پیدا ہوگا۔ 12 اجتماعات اور میل جول۔ کسی اسلامی مجلس یا بیٹھک میں شرکت کر رہا ہے، علماء دین کے لطیف کلمات سنیں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شورا کریں کہ اس ماہ میں کون کون سی نیکیوں کو ترجیح دی جائے۔ اجتماعات سے حوصلہ بڑھتا ہے اور خاموشی میں عمل کا عہد مضبوط ہوتا ہے۔ 13 شکر گزاری کے عملی ثمرات۔ جب اپنے نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے اللہ اور لوگوں کے سامنے شکر بجا لائیں گے تو آپ کو مزید نعمتوں کا الہامی پتہ ملے گا۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا، بیمار کو دوا دلوانا، ماں باپ کی خدمت، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ 14 صبر اور شکر کا امتزاج۔ کوئی انسان بلندیوں پر تب پہنچتا ہے جب وہ صبر اور شکر دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مشکلات میں صبر سے کام لے، جب خوشیاں ملیں تو شکر ادا کریں۔ صبر اور شکر میں اللہ کے قرب کا راز دفتردار ہے۔ 15
माउतन कुरान रोज़ाना दिन भर कम अज़ कम 5 मिनट कुरान के साथ गुजारी। आयतें पढ़ें, उन पर गौर करें, ज़िंदगी के फ़ैसलों में कुरान मजीद को रहनुमा बनाएं। 16 नमाज़ शब रात के सन्नाटे में अल्लाह को पुकारने का अपना ही मज़ा है। हर रात कम अज़ कम 5 रकत तरावी या तहज्जुद के लिए उठीं। इस इबादत में दिल की धड़कन सुकून इलाही में गुम हो जाती है। 17 हदफ अल्लाह की मोहब्बत। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। मोहब्बत की अलामत यह है कि हम उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करने लगें, लोगों की इस्लाह, उनकी रहनुमाई में हिस्सा डालें। 18 इख्तितामिया दुआए अल्लाह हमें अपने ज़िक्र से महरूम न कर, हमारे दिलों को यकीन नवाज, हर लम्हा हमें तेरे कुर्ब का एहसास अता फरमा, हमें अपनी मोहब्बत और हिदायत के सहारे रख और हमारे अमाल को कबूल फरमाए में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अलसदन अलअंबिया व अलमुरसलीन नबीना मोहम्मद। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आला वसहबा जमाउन इज़्ज़ान मन। अब तमाम पर अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें हों। आज हम ज़ी अलक़दा के महीने में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करने और अपनी रूहानी ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के मौजू पर एक मुफस्सल और मोटिवेशनल खिताब पेश करने जा रहे हैं। यह खिताब मजमूई तौर पर तकरीबन 2500 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम इस बाबरकत महीने की अहमियत, इसमें की जाने वाली इबादात, हसन इखलास और अमल की अमली राहों पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह करे ये अल्फाज हमारे लिए हिदायत का सबब बन। पहला हिस्सा ज़ी अलक़दा की फ़जीलत व अहम ईद। एक महीना ज़ी अलक़दा का तारुफ। ज़ी अलक़दा इस्लामी कमरी साल का 11वां महीना है, जो ज़ी अलहिज्जा से पहले आता है। इसका मान मालिक होता है और अलक़दे का मान बैठने आराम करने के हुसूल से ताल्लुक़ रखता। हिम के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इस महीने का अलग ही रूहानी रंग होता है, क्योंकि ये हज के आम तरों से कब्ल का महीना है। 2 असहाब रसूल का इस महीने में किरदार। सहाबा कराम ज़ी अलक़दा के महीने को बड़ी हुर्मत और खुजू के साथ गुजारते थे, क्योंकि इसके इख्तिताम पर अज़म उल हज का महीना यानी ज़ी अलहिज्जा आता है, इसलिए वो इस माह को तैयारी और दिल की खामियों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल में लाते थे। 3 अमन व अमान का महीना। इस्लामी तक़वीम में ज़ी अलक़दा, ज़ी अलहिज्जा और मुहर्रम अल हराम को अशहर अल हरमैन हुर्मत वाले महीने कहा गया है। उन 3 दिनों की हुर्मत इसलिए भी ज़्यादा है कि भत्ता खौरी, जुल्म व सितम, खून आशामी और दीगर जुल्म के अमाल की सख्त मानात है। दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने के असबाब। 4 खूबसूरत इरादा और नियत। इरादा और नियत का हसन सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ज़ी अलक़दा के महीने में इरादा करें कि हर अमल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करेंगे। रोज़ाना बिलवासिता बिलावास्ता हर अमल में ये नियत दोहराना चाहिए, अल्लाह मैं ये अमल सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। 5 रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत। कुरान हकीम अल्लाह ताला का कुरान है, जिसे पढ़ने और समझने से रूह में नूरानी कैफियत पैदा होती है। इस माह में रोज़ाना कम अज़ कम 1 सफ़हा आपारा तिलावत करना, मानी और तफसीर जानना। दिल में अपना अकाउंट रख कर रोज़ाना कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाना बेहतरीन अमल है। 6 तफक्कुर व तदब्बुर। सिर्फ तिलावत करना काफ़ी नहीं, बल्कि कुरान की आयत में गौर व फ़िक्र करना भी लाजिम है। मिसाल के तौर पर सूरत अल-बक़रा की आयत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अहकाम बयान किए। इन अहकाम के पीछे हिकमतें सोचें, इससे हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा मुस्तहकम होगा। 7 नमाज़ों का एहतिमाम और खुशू व खुज़ू। 5 फ़राइज़ नमाज़ें अल्लाह के हुज़ूर हमारा सबसे बड़ा इज़हार अक़ीदत। आउज़ अलक़दा के महीने में नमाज़न तहज्जुद और वतर के एहतिमाम से नमाज़ें मज़ीद बाबरकत होती हैं। नमाज में आंखें बंद करके अल्लाह की ज़ात को याद करके अपने दिल में खुशू पैदा करें। 8 दुआ और मुनाजात। दुआ अल्लाह से राब्ते का सबसे नाजुक और पर असर ज़रिया है। इस माह की पहली 10 रातों में मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा अनी अस्लुक वगैरह पढ़ें और अपनी ज़ात से मुनाजात करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें, अपनी हाजात अर्ज़ करें। अल्लाह से करीब होने का ये सबसे सच्चा रास्ता है। तीसरा हिस्सा अमली सरगर्मियाँ और नफली अबादत। 9 रोज़ा रखना। ज़ी अलक़दा के महीने में नफली रोज़े बहुत जन्नती सम्राट का बाइस हैं। हदीस पाक में आता है कि हर नेकी बेशक अल्लाह के लिए है
اور नेकियों में रोज़े का मकाम बड़ा ख़ास है। आप इस महीने में हफ्ते के 2 दिन बीच बीच में रोज़े रखकर रूहानी सुकून हासिल कर सकते हैं। 10 सदक़ात व खैरात। अल्लाह ताला ने सदका और खैरात को माल में बरकत और दिल में सुकून का ज़रिया बनाया। इस माह में मस्जिदें और मिस्कीनों के घर जाकर सदका दें, यतीमों की कफ़ालत करें, सड़क किनारे भिखारियों को खाना खिलाएं, इससे अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। 11 अज़कार और दूसरी अज़कार। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह के अज़कार बेहद खूबसूरत हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार हर जिक्र करें, इससे शैतान दूर होता है और आपके दिल में सुकून होता है। 12 हसन अखलाक और रिफ़क़ व मदरा। वालिदैन, अहल खाना, हमसायों और फ़ुक़रा से हसन सलूक आपकी ईमानदारी को ज़ाहिर करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। लिहाजा इस माह में खुसूसी तवज्जो रखें। 13 तौबा व इस्तिग़फ़ार। इंसान कमज़ोर है और गुनाह का मुर्तकिब होता रहता है। ज़ी अल-क़दा के महीने में इस्तिग़फ़ार करना और माज़ी के गुनाहों की मुआफ़ी मांगना ताल्लुक़ इलाही को मज़बूत करता है। हर रात कम अज़ कम 50 मरतबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह रबी व इतोब इलैह पढ़। 14 कुरानी इज्तिमाआत और मजलिस ज़िक्र। मस्जिद अपने घर में कुरान और ज़िक्र की महफ़िलें मुनक़िद करें, क़ारी से कुरान सुनें, इस पर तबसरे और तशरीह करें। ये माहौल रूह को ताज़गी बख्शता है और अल्लाह के ज़िक्र में मुस्तग़रक़ करने में मदद देता है। चौथा हिस्सा अंदरूनी इस्लाह और खुद एहतिस इब्बी। 15 खुद एहतिसाबी मुराक़बा नफ़स। हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लें, कौन सी नेकियां हुईं, कौन से गुनाह सरज़द हुए, आइंदा के लिए क्या बेहतर लानी है। इस अमल से इंसान अपने नफ़स को पहचानता है और अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर होता है। 16 इखलास खालिस नियत। अमाल का असल मेयार खुलूस नियत है। ज़ी अल-क़दा में हर वो अमल जो दिखावे और रियाकारी से पाक हो अल्लाह के नज़दीक मकबूल होगा। रिया से बचने के लिए अल्लाह ताला से खुलूस की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अख़लासल नियत। 17 सब्र व शुक्र। दुनिया में आज़माइशें आती रहती हैं, बेहतरीन सिफत सब्र है और उसके साथ शुक्र का जिज़्व लाजिम है। जो शख्स सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करता है अल्लाह के करीब होता है। ज़ी अल-क़दा में हर हाल में शुक्र अदा करने की आदत डालें। 5वां हिस्सा कहानी और अमल की मिसाल। 18 सहाब का वाक़या। एक मर्तबा हज़रत बू अल-दुर्दाक ने इरशाद फरमाया, मैं रोज़ाना पारा चहारुम की तिलावत करता हूँ, लेकिन नियत ये होती है कि अल्लाह के करीब से क़रबतर हो जाऊँ। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि इल्म व अमल दोनों के ज़रिए ताल्लुक़ इलाही मज़बूत होता है। 19 एक आम मुसलमान की मिसाल। मोहम्मद नामी एक शख्स जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसरूफ़ियात में खो जाता था। इसने ज़ी अल-क़दा के पहले दिन से एहतिमाम किया कि वो हर रात दुआ और कुरान की तिलावत के लिए कम अज़ कम 1 घंटा निकालेगा। हफ्ते के इख्तिताम पर उसके अंदर सुकून, इत्मीनान और अल्लाह से क़ुर्बत का एहसास बढ़ गया। 20 अमली चैलेंज। अब भी ज़ी अल-क़दा में खुद के लिए एक प्लान बनाएं। रोज़ाना तिलावत कुरान 1 पारह, रोज़ाना ज़िक्र 300 मरतबा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अलिफ़ाम अलकर के खुतबे सुनाना। हफ्ते में 2 नफली रोज़े, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा। इख्तितामी कलमात। अल्लाह ताला ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना ताल्लुक़ इलाही मज़बूत करें और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें। ज़ी अल-क़दा का महीना इस तैयारी का सबसे बेहतरीन वक्त है। आइए इस महीने की कदरदानी करें, अपनी रूहानियत को जदीद दौर की मसरूफ़ियात से आज़ाद करें और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें। ए मेरे भाइयों ओ बहनों, अल्लाह ताला हमें इस महीने में नेकियां करने की तौफ़ीक अलिफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें आखिरत में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीयन में शामिल फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस महीने में अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने पर एक रूहानी और मोटिवेशनल खिताब।